کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو. جو باتیں ہوگی وہ پارلیمان کے اندر آپ نے اس کا پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, احتجاج بھی کرنا ہے, اپنے سینٹ میں بھی اجلاس ریکویزیشن کرنا ہے, ایوانوں میں یہ بات آپ نے اٹھانی ہے. جو یہ کہا گیا کہ پنجاب کی قیادت نہیں آئی, پنجاب کے منے MP نہیں آئے, خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس لیے خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ 26 تاریخ کو کیا ہوا ہے. آج خان صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 12 شہداء کے بارے میں بتایا, جو رینجر کے اہلکار شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا, جو پولیس کا ایک اہلکار شہید ہوا ہے ان کے بارے میں بتایا ہے. خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے. ان سب کے خاندانوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کرتے اور دعا کرتے ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار اس بات پہ کیا ہے کہ سٹرائک, پروٹیسٹ, دھرنا جہاں بھی ہوتا, چاہے کسی بھی جگہ میں اسلام آباد میں ہوتا, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ گولی چلائے, اور وہ بھی گولی پہلے دن آئے, ابھی پڑاؤ ڈالا نہیں, گولی چلی جس سے شہادتیں ہوئی ہے. یہ شہادتیں جس طریقے سے ہوئی ہے خان صاحب نے اس کی بڑی مذمت کی ہے. خان صاحب نے پورے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے لیے قرآن خوانی کرے اور ان سب کے لیے دعا کرے. جتنے لوگ زخمی ہوئے ان کی تیمارداری کرے, ان کے ساتھ ہیلپ کر لے. اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ پارٹی کے لیے ہدایات دی ہے کہ اپنی یونٹی برقرار رکھو. آپ کے مخالفین آپ کے درمیان آئیں گے, وہ آپ کے ٹرسٹ کو ڈسٹرسٹ میں بدلیں گے. آپ سب لوگوں نے جو باہر نکلے ہیں ان کو خان صاحب خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ساری قیادت کو خان صاحب ان سب پہ اعتماد کرتے ہیں. ساری قیادت کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو, کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لگو. آپ کا آواز یہ ہے کہ گولی کیوں چل. کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو. جو باتیں ہوگی وہ پارلیمان کے اندر آپ نے اس کا پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, احتجاج بھی کرنا ہے, اپنے سینٹ میں بھی اجلاس ریکویزیشن کرنا ہے, ایوانوں میں یہ بات آپ نے اٹھانی ہے. اس کے ساتھ ہی خان صاحب یہی کہہ رہے اپنے عوام کو, خاص کر پنجاب کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ پنجاب کی قیادت نہیں آئی, پنجاب کے منے MP نہیں آئے. خان صاحب یہی کہہ رہے کہ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پنجاب کے منیز MP جس مشکل حالات سے گزرے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. خان صاحب ان سب کے سختیوں کی, ان کی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور خان صاحب نے ان سب کے لیے بھی خراج تحسین بھیجا ہے. خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مخالفین ہیں جو تفرقہ ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں, سب سے درخواست ہے کہ وہ یونٹی اس پارٹی میں بھی رکھے اور اپنے شہداء کے لیے دعا کرے, اور یہ آواز انشاءاللہ ہم ہر جگہ اٹھاتے رہیں گے. نیکسٹ لائے عمل انشاءاللہ تعالی خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا, بشرا بی بی کے حوالے سے کیا بات ہوئی, کیونکہ ساری انگلیاں ان کی جانب اٹھ رہی ہیں کہ اگر وہ احتجاج کو سنجانی لے آتے ہیں, کیونکہ عمران خان نے آلریڈی کہا تھا کہ آپ سنجانی آ جائیں, اس حوالے سے ان کا کیا؟ دیکھو خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے, چاہے ہم سنجانی تھے, چاہے ہم ڈی چوک تھے, کسی بھی جگہ میں ہیں, پروٹیسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے. جہاں بھی پروٹیسٹ ہونا تھا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی, اسپیشلی جب ابھی تک سارے لوگ آئے بھی نہیں تھے, تو اس لیے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ساری دنیا ایک لفظ کہتی ہے, 1 is too many. ایک بندے کی شہادت بھی بڑی بات ہے. آپ اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلاتے. گولی جس طرف سے بھی چلی, جس نے بھی چلائی, جیسے بھی چلی, گولی کی مذمت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بیرسٹر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بات, اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج سب کو یہ کہوں, الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں, یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے, وہ بھی ساری خبریں غلط ہے. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. دوسری بات, ہم نے ایک
जमहूरी पार्टी है, हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए, मिसिंग पर्सन का हो जाए कि वाकई उसकी शहादत हुई है। इसलिए हमारा वही फिगर है जो ऑफिशियली दिया हुआ है। चार लोग खड़े हैं, आप जो लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है, आपकी जो लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है, 4 लोग, मैंने आपकी डेड बॉडीज देखी हैं, जो लोग शहीद हुए उनमें से आपका एक शख्स भी आप 4-5 में से नहीं गया। जो देखिए एक बात मैं आपको सर लेट मी स्पीक, मैंने डेड बॉडीज देखी हैं, इस हवाले से बात कर रहा हूँ। कोई कहता है 276 है, कोई 2000 कह रहा है। आप लोग कहाँ थे? लोगों को कफन बांध के कहते हैं कि आ जाएं डी चौक, आप क्यों नहीं आए? यही वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। सारी लीडरशिप, सारे लोग इकट्ठे अपने अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, एक दूसरे के साथ इन टच थे। ये वो लोग बातें करते हैं जो तफरका डालते हैं, इसकी पॉइंट ही कोई नहीं है। बाकी जो शहादतें हुई हैं वो अपने मुतालिका लोग इंशाल्लाह जा चुके हैं और हर जगह जाएंगे, और पार्टी के जो लोग हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। कौर साहब, अगर आपका डी चौक जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जब लोग शहीद हुए, जब लोग जख्मी हुए, तो कम से कम आप अस्पताल तो उनके लिए जा सकते थे ताकि कोई मीडिया भी आपको देखो वजीर आला, एक मिनट मैं पूरा सवाल करूं। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं डी चौक आना जरूरी नहीं था, तो क्या वो जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, नहीं, हमने खान साहब ने कहा है कि आप संजानी बैठ जाए, इसका मतलब है वो दुरुस्त है या नहीं? देखो मैंने नहीं कहा कि डी चौक जाना जरूरी नहीं था। ये अल्फाज आप कहाँ से लेके आए? डी चौक का हमने जिक्र नहीं किया। हम ये कह रहे हैं सर, एक मिनट शार्ट, हाँ, जहाँ तक वो लोग हैं, वज़ीर आला साहब गए हुए हैं, KPK में लोग आए हैं, KPK से पंजाब से भी 1-2 ज़ख्मी वहाँ आए थे, जो वहाँ मौजूद है लोग, उन सब के पास जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, उनकी तीमारदारी अभी भी करेंगे, उनके लिए दुआएं भी की है। ये पॉइंट है। हम ये कह रहे हैं कि गोली नहीं चलनी चाहिए थे। दैट्स इट। एक सेकंड, ये बताइएगा, इमरान खान ने जब 24 नवंबर के एहतजाज का ऐलान किया, हमारे सामने भी उन्होंने डी चौक का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हमारा मरकज़ होगा, जगह उन्होंने फाइनल नहीं बताई। उसके बाद मुतअद्दिद समातें हुई 2-3, उसमें भी उन्होंने कहीं पर भी डी चौक का जिक्र नहीं किया। उसके बाद जब आपकी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ, आपकी जब फाइनल मूवमेंट पे बात हुई, तो उसमें संजानी पे उन्होंने एग्री किया, और आज भी उन्होंने इसकी तरतीब नहीं की संजानी की। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि संजानी शहर से बाहर है, लेकिन इनकार नहीं किया। तो ये फैसला डी चौक का कहाँ पे हुआ, किसने किया, और क्यों डी चौक की तरफ लोग गए? देखे, मैं कह रहा हूँ लोग इसलिए कह रहे हैं संजानी डी चौक कि वो शहादतों से तवज्जो हटा रहे हैं। जिधर भी होता गोली नहीं चलनी चाहिए थी। अगर हम डी चौक ना हम संजानी चलते, क्या वहाँ गोली चलनी चाहिए थी? क्या हम डी चौक आए? अभी रास्ते पर है, अभी वो पहुँचे भी नहीं है, अभी वो खड़े नहीं है, रास्ते पे हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं। क्या उसी वक्त गोली चलनी चाहिए थी? इसलिए हमारी ये इस्तिदा है कि हमारा एक ही नैरेटिव वो ये कि ये होना नहीं चाहिए था। एक मिनट, आखिरी सवाल। 12 लोग आप कह रहे हैं कि शहीद हो गए, किसी की एक की FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई। देखो, जहाँ तक FIRों की है वो हमने कहा हुआ है, सारे लोग हमेशा ऐसे कहते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखिए होता ये, आफ्ताब शेरपाव साहब की हुकूमत थी 90s में, और निफाज शरीयत के लिए तहरीक चली। उस तहरीक में लोग शहीद हुए, वज़ीर आला चला गया, माफ़ी भी मांगी, कंपनसेट भी कर लिया, पर्चे भी दर्ज करवा लिए, जैसे भी बाद में करने थे कर लिए। मॉडल टाउन का भी हुआ, जो इम्पॉर्टेंट बंदे थे उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिए, कमीशन भी बना। इस वक्त भी हुआ है। ये तो हमारा मुतालबा है और रहेगा कि इसकी भी आप इंक्वायरी करें, इसके भी कमीशन बिठाएं। जिसने भी किया है, जिसने भी गोली चलाई है, उनके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई हो वो तो हो। हमारा सिर्फ कहना यही है, एक ही इस्तिदा है कि देखो सारा टीम यही है कि गोली क्यों चली। बात पर पाबंदी लगाने का हुकूमत सोच रही है, उस हवाले से क्या लाए? इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, पुरअमन और पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल स्ट्रगल करेगी। हर पाकिस्तान के हर सूबे में इनकी नुमाइंदगी और इंशाल्लाह नुमाइंदगी करते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आखिरी सवाल ले लें, ये बताइएगा कि ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर है अली भाई की भी एक ऑडियो कल सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। क्या पार्टी सतह पे
इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका एहतसाब होगा देखो कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। पार्टी हमेशा से अपने हर एक काम का एहतसाब करती है, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ है मैं सिर्फ ये इस्तदा करूं, कोई लीक नहीं होने चाहिए। वो जो भी लीक करता है, लीक की कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला पार्टी सर जो गुफ्तगू सर आपने की है, जो बातें आपने की हैं, जो आपके कारकुनान हैं वो कहते हैं कि ये अंदर जो बातें होती हैं बाहर आके लोग आप पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कहते हैं बाहर आके वो बातें बताई नहीं जाती हैं, तो कैसे यकीन करेंगे जो बातें आपने की हैं? देखो, मैंने जो बातें की है ये हमारे सारी लीडरशिप और बाकी सारे लोग यहाँ मौजूद थे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ कहूँ, मैंने खान साहब को बारहा कहा है कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद वो इंसान हूँ और पूरे एशिया का वाहिद पस्त हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 7वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब ने अली साहब की मौजूदगी में और इसके रहनुमाई में वो सीट अपनी मुझे दी है। मेरी खान साहब से कोई लालच नहीं है। मैंने ना आइंदा खान साहब से कोई ओहदा लेना है, ना कोई टिकट मांगना है। मैं खान साहब की हिदायत में कभी कमी बेशी नहीं करता, मैं वैसे भी किसी के नहीं करता। ये सारी बातें खान साहब की है और खान साहब के पैगाम हम लोगों को पहुँचाते हैं। आप पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी इस वक्त आयद होती है। ना तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अस्पतालों में गया अपने कारकुनों का पता करने के लिए ताकि मीडिया कवरेज ही कम से कम मिल जाती, ना आपने FIR दर्ज कराने के लिए ना किसी कोर्ट में राब्ता किया। और दूसरा आपने कहा गोली क्यों चलाई, क्या आप बता सकते हैं कि गोली किसने चलाई? देखो, गोली किसने चलाई कोई इशू नहीं, जिसने भी चलाई गलत है, ये इंक्वायरी होती है। एक मिनट, जहाँ तक आप कहते हैं कि कौन लोग गए, कहाँ पर हुआ, ऐसी बात नहीं है। हमें 5 मरतबा, एक मिनट सुने तो सही, आप सुन लिया करें, सुन लिया करें। 5 मरतबा मेरी वज़ीर आला से मुलाकात हुई है। 13 मरतबा हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग हेल्ड की है। 17 पॉलिटिकल लीडर, मैं हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ, 17 पॉलिटिकल लीडर मेरे घर आए। कल और परसों में इतनी जगह बिजी रहा कि मैं गवर्नर गुलाम अली साहब को टाइम नहीं दे सका था, इतनी पार्टी के काम थे। मैं मौलाना गुल नसीब साहब आ रहे थे, पार्टी ही के कामों में इतना बिजी था कि वो उसको सवाबी जाना पड़ा। तो हम सारे लोग बिजी हैं, बशमूल उसके सलमान राजा साहब के, सब के, हर अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं। हर बंदा गया है। सलमान राजा साहब आपके सामने, ये उन शहदा के घर भी गए, ये जो जख्मी हुए उनके लिए हुकूमत ने ऐलान भी किया है, KPK गवर्नमेंट ने, हम उनको 1 करोड़ रुपए भी देंगे। जितने भी शहदा है क्रॉस द बोर्ड और जितने भी लोग हैं उनके लिए तीमारदारी भी कर रहे हैं और उनका हेल्प भी कर रहे हैं। इसके बाद कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा? देखो, फिलहाल मुज़ाकिरात का कोई नहीं कहते हम कुछ।